آئینی عدالت نہیں آئینی بینچ بنے گا۔ نون لیگ اور پی پی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئیں۔ جے یو آئی کی تجویز سے اتفاق کر لیا۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے مسودے سے آئینی عدالت ڈراپ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جے یو آئی مشترکہ مسودے پر پی ٹی آئی سے مشاورت کرے گی۔ ترمیمی مسودے کے معاملے پر نون لیگ کے کچھ خدشات۔ بلاول بھٹو نے نون لیگ کو صاف کہہ دیا، مولانا فضل الرحمان کو زبان دے دی ہے، پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ذرائع کا کہنا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ چیف جسٹس کا تقرر 3 سینئر ترین ججز میں سے ہوگا۔ پیپلز پارٹی، جے یو آئی، نون لیگ کا آئینی ترامیم پر اتفاق۔ سپریم کورٹ کے 5 یا 9 رکنی آئینی بینچ کے قیام کی تجویز۔ صوبوں میں آئینی بینچ نہیں بنیں گے۔ آئینی بینچ میں رد و بدل کا اختیار چیف جسٹس کو نہیں ہوگا۔ سو موٹو نوٹس کا سپریم کورٹ کا اختیار ختم کرنے کی بھی تجویز۔ 19ویں آئینی ترمیم کو مکمل ختم کرنے کی تجویز۔ فلور کراسنگ پر نااہلی ختم کرنے کے لیے آرٹیکل 63A میں ترمیم کا بھی فیصلہ۔ نو مئی کے ملزمان کے ٹرائل کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام پر اتفاق نہ ہو سکا۔ جاتی امرا میں سیاسی قیادت کی بڑی بیٹھک کی اندرونی کہانی۔ میاں صاحب کے ڈنر پر مولانا اپنے موقف پر ڈٹ گئے۔ ذرائع نے بتایا حکومت و اتحادی جماعتوں اور مولانا کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ حکومت اور مولانا کا بڑا اختلاف فوجی عدالتوں پر ہے۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء مولانا کو فوجی عدالتوں پر منانے کی کوشش کرتے رہے۔ مولانا کو کہا گیا ہم فوجی عدالتوں کے بدلے آئینی بینچ کی تجویز مان لیں گے۔ مولانا نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے اہم رہنما نے بھی مولانا کے موقف کی تائید کی۔ چیف جسٹس کی تقرری پر بھی مولانا کا پی پی اور نون لیگ سے اختلاف تھا۔ اتفاق رائے کا موقف صرف میڈیا کے لیے تھا۔ نواز شریف نے میٹنگ میں وزیر اعظم کے موقف کی مکمل تائید کی۔ اب تک کے معاملات ہیں ان کو بریف کیا ہے تارڑ صاحب نے، کامران مرتضیٰ صاحب نے، جو عہدہ جہاں تک پہنچا ہے اس کی کچھ جزیات تفصیلات انہوں نے شیئر کی ہیں۔ بہت جلد کنسنسس کمپلیٹلی ہو جائے گا جو کہ 80-90% بڑے معاملات پہ ہو چکا ہے۔ کچھ چھوٹی جزیات ہیں ان پہ انشاءاللہ آج کام ہو جائے گا۔ آئینی ترامیم سینٹ میں کل لائی جائیں گی۔ بڑے معاملات پر 90% اتفاق رائے ہو چکا، چھوٹی چیزوں پر آج کام ہو جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کی وزیر اعظم کے ظہرانے کے بعد گفتگو۔ کہا وزیر اعظم نے آئینی ترامیم پر اراکین کو لیڈرشپ سے بات چیت پر آگاہ کیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آئینی ترامیم کے مسودے پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں ملاقات۔ آئینی ترامیم سمیت سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ گورنمنٹ نے اپنا ایک تھرڈ ورژن دیا ہے، ایک ڈراپ کیا ہے اس میں، جس میں کنسٹیٹیوشنل بینچ کی بات ہوئی ہے رادر دین کنسٹیٹیوشنل کورٹ کی، تو ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ اب آج ہماری مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے۔ حکومت نے آئینی ترمیم کا مکمل مسودہ شیئر نہیں کیا، مگر آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ کی بات سامنے رکھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد ہی حتمی صورتحال سامنے آئے گی۔ بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا حکومت کے 7 ارکان ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا نمبر گیم پورا نہیں تو آئینی ترمیم کا پنگا کیوں لیا؟ پی ٹی آئی ایم این ایز کو آئینی ترمیم میں ووٹ کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج ایم این ایز کو 1 ارب تک کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ میرے پارٹی کے لوگوں کو بھی دھمکایا بھی جا رہا ہے اور گالیاں بھی دی جا رہی۔ سینیٹروں کو، ایم این ایز کو گالیاں، دھمکیاں، ان کے بچے، ان کو خود اگر اس طرح سے لے کے جانا ہے، اگر اس ہاؤس میں بیٹھ کے اس طرح سے بے عزتی کروانی، پھر اس ہاؤس میں بیٹھنے کا پھر کوئی وجہ موجود نہیں ہوگی۔ ہماری جماعت کے لوگوں کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا انکشاف۔ کہا سینیٹرز اور ایم این ایز کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ کیا اس طرح دستور میں ترمیم کی جا رہی ہے؟ اس طرح ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ آپ آج ووٹ لیں گے تو وہ دل پر کیل کا اثر کرے گا۔ راشد سومرو کا کہنا ہے پیسوں کے لین دین ملک کے ساتھ غداری ہوگی۔ ضمیر فروش لوگوں کو غدار سمجھتے ہیں۔ ہمارے بندے توڑ لیے ہوتے تو پھر مشاورت کیوں کی جاتی؟ ہم 5 سال مزید سزا بھگت لیں گے لیکن ماورائے آئین اقدام نہیں کریں گے۔
सर्विसेज चीफ्स की तैनाती दोबारा तकर्रुरी या ओहदे से हटाने का अमल आइन के मुताबिक होगा। दोबारा तकर्रुरी या सर्विस में तौसी के बाद तब्दीली नहीं होगी। तकर्रुरी, दोबारा तकर्रुरी या तौसी में किसी तब्दीली का मामला खुसूसी कमेटी में लाया जाएगा। JUI के तरमीमी मुसव्वदे के अहम नुकात ARY न्यूज सामने ले आया। मुसव्वदे में कहा गया है खुसूसी कमेटी पार्लियामान के दोनों ऐवानों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली मिलकर बनाएंगे। कमेटी में दोनों ऐवानों से बराबर की नुमाइंदगी होगी। कमेटी में हर पार्लियामानी जमात से एक रुकन शामिल होगा। पार्लियामानी कमेटी सर्विसेज चीफ की तैनाती दोबारा तकर्रुरी या तौसी से मुताल्लिक तजावीज़ सदर को भेजेगी। कल इंशाल्लाह जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद पूरे पाकिस्तान में 18 अक्टूबर को हर ज़िले के अंदर, हर शहर के अंदर आप लोगों ने भरपूर तरीके से निकलना है और आप लोगों ने पुरअमन एहतजाज करना है। आज आवाज ना उठाई तो कब उठाओगे? वजीर आला KP ने आवाम से कल एहतजाज की अपील कर दी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, बानी PTI और कारकुनों की रिहाई के लिए एहतजाज करें। गैर आइनी तरामीम के खिलाफ कौम को सड़कों पर आना होगा। आज आवाज ना उठाई तो हमारी नस्लें यही सब भुगतेंगी। पंजाब हुकूमत का सूबे में कल तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। जामियात, कॉलेज और स्कूल बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सूबे भर में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। जलसे जुलूस समेत हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी। रावलपिंडी में कल मेट्रो सर्विस बंद रहेगी। सुनने मिलेगा कि धरना कब है, जुलूस कब है, जलसा कब है, नाच गाना कब है। तरक्याती काम का आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि यहाँ पर कोई तरक्याती काम हो। हर हफ्ते आवाम को जो है वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई के लिए जो है तैयार किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। KP में तरक्याती काम का कोई नाम नहीं लेता। आप KP आएंगे तो सुनने को मिलेगा धरना कब है, नाच गाना कब है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं 18 अक्टूबर स्याह तरीन दिन था जब बुज़दिलाना हमला किया गया। सैकड़ों जियाले शहीद हुए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इस बार 18 अक्टूबर के शुहदा की बरसी हैदराबाद में मनाएंगे। बिलावल भुट्टो कल आइंदा के इलाहे अमल के बारे में बताएंगे। कल का जलसा माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। सिलसिला शुरू हो गया वायलेंस का, प्रोटेस्ट का। काफी ज्यादा तोड़फोड़ हुई, बाइक्स को आग लगाई गई, बिल्डिंग को डैमेज किया गया। जो भी इन्वॉल्व होगा वो अरेस्ट होगा। स्टूडेंट्स वो हरकत कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, उसका लॉस अल्टीमेटली उनको होगा। पुलिस परमानेंट रिकॉर्ड बनेगा। कल को उनके एडमिशंस में उनको प्रॉब्लम होगी, वीजाज लगने में प्रॉब्लम होगी, जॉब्स लेने में प्रॉब्लम होगी। कानून हाथ में लेने वाले तलबा का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा। आज भी तोड़फोड़ करने वाले 31 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 55 शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक हमियाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 12 तारीख को सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा वायरल हुआ। पहले एक और बाद में से 2-3 लड़कियों के नाम सामने आए। एक शादीशुदा लड़की का भी नाम लिया गया। अस्पतालों में चेक किया गया, कहीं भी ऐसा ज्यादती का केस सामने नहीं आया। तफ्तीश करने पर मालूम हुआ एक लड़की अस्पताल में जेरे इलाज है। FIA तहकीकात कर रही है कि पहले किसने पोस्ट किया। 50 के करीब सोशल मीडिया जाली अकाउंट पकड़े गए। सरगोदा में एहतजाज करने वाले 40 तालिब इल्म गिरफ्तार। 172 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव का मुकदमा दर्ज। 24 मुल्जिमान गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने का मुकदमा हासिलपुर में दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम जुबैर नामजद। इसराइल का गजा में हमास सरबराह को शहीद करने का दावा। सेहूनी फौज का कहना है गजा में ऑपरेशन के दौरान हमास के 3 रहनुमा मारे गए। ऑपरेशन में याहिया सिनवार की हलाकत की तस्दीक की जा रही है। DNA टेस्ट के जरिए शनाख्त का अमल जारी है। हमास ने 31 जुलाई को इस्माइल हनिया की शहादत के बाद याहिया सिनवार को सरबराह मुकर्रर किया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने जबालिया में हमास और इस्लामी जिहाद के इजलास के दौरान हमला किया। SCO इजलास का कामयाब इनेकाद बड़ी सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तान की सिफारती प्रोफाइल आलमी सतह पर मजीद मुस्तहकम हुई।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का हुकूमत और इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज में ज़ोहराने से खिताब। कहा SCO इजलास से पहले चीनी वजीर आजम का इंतहाई कामयाब दौरा हुआ। इजलास की कामयाबी में नायब वजीर आजम इसहाक डार का कलीदी किरदार है। मुखालिफिन को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत करके जवाब देंगे। सब ने सियासत की कुर्बानी देकर खूब मेहनत की। कौमी मुफाद के लिए इत्तेहादियों से मिलकर खुशहाल पाकिस्तान की जानिब गामजन हैं। SCO कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने की साजिश की गई। इनको मरोड़ पड़ गए कि पाकिस्तान में 12 ममालिक के सरबराहान आए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा SCO कॉन्फ्रेंस का कामयाबी से इनेकाद किया गया। सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में बदलने की रीत बानी PTI ने डाली। उनकी तकारीर में कभी इसराइल के मजालिम का जिक्र नहीं मिलेगा। इन लोगों ने फ़लस्तीन पर APC में शिरकत से इनकार किया। SCO इजलास के कामयाब इनेकाद पर कौमी असम्बली और सेनेट में करारदादें मंजूर। सेनेट में करारदाद पर PTI अरकान ने दस्तखत नहीं किए। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा एक अरसे बाद इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। पैगाम गया कि पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारी के लिए मौजू है। एमल वली खान ने कहा इन हालात में पाकिस्तान में पुरअमन कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाबी है। भारतीय क्रिकेट टीम को खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की भारतीय सहाफियों से गुफ्तगू। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा भारतीय वजीर आजम SCO समिट में आते तो अच्छा होता। माजी बहुत तल्ख रहा है। SCO से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मुलाकात में शरीक थी। भारतीय सहाफी SCO समिट की कवरेज के लिए पाकिस्तान आए थे। और इंग्लिश बैटर पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने बेबस। मुल्तान टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। तीसरे दिन बॉलर्स का राज रहा। 16 विकेटों में से 13 स्पिनर ले गए। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 297 रन का हदफ दे दिया। सलमान आगा ने 63 रन की बारी खेली। इंग्लैंड को मजीद 261 रन और पाकिस्तान को 8 विकेटें दरकार। मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी। 18 नवंबर तक पेश करने का हुक्म। हसीना वाजिद और अवामी लीग के दीगर अहम रहनुमाओं समेत 45 अफराद के वारंट जारी किए गए। तमाम अफराद पर तलबा तहरीक के दौरान इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुल्ज़म हैं। शेख हसीना वाजिद अगस्त में भारत फरार हो गई थी। वज़ीर आज़म से SCO के सेक्रेटरी जनरल ज़ोंग मिंग के मुलाकात। वज़ीर आज़म ने SCO हेड ऑफ गवर्नमेंट इजलास पर सेक्रेटेरिएट के ताउन का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान SCO रुकन ममालिक और खित्ते के वसीतर मफाद के लिए दिल से काम करता रहेगा। ज़ोंग मिंग ने SCO के तमाम शोबों में पाकिस्तान की तामीरी शराकत को सराहा। पाक बहरिया का शुमाली बहर अरब में कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के साथ ऑपरेशन। कश्ती से 1.3 टन हशीश बरामद। जब्त मंशियात की बैनुल अक़वामी मार्केट में मालियत $26 मिलियन है। ऑपरेशन में PNS जुल्फ़िकार और PMSS कोलाची ने हिस्सा लिया। ISPR का कहना है मुश्तरका ऑपरेशन में अमरीकी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर USS इब्राहिम लिंकन ने मदद की। अमरीकी कोस्ट गार्ड और पाक बहरिया के हवाई जहाज़ों ने भी मदद फराहम की। SSP घोटकी के जराइम पेशा अफराद से का इंकशाफ। DIG सख्त खत लिख दिया। कहा हफीज बुगटी के डाकुओं से ताल्लुकात हैं। ये डाकू अहलकारों के कत्ल में मुलव्विस हैं। SSP को नोटिस देकर वजाहत तलब की जाए। भारतीय हुकूमत ने कनाडा की खुद मुख्तारी में मुदाखलत का सोचकर भयानक गलती की। कनाडा अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कहते हैं चाहते तो G20 सरबराह इजलास भारत के लिए इंतहाई तकलीफ दे बना देते। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कैनेडियन और अमरीकी शहरियों के कत्ल में भारत बराह रास्त मुलव्विस है। भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवाल को सबूत पेश कर दिए गए। कैनेडियन हुकाम का दावा है उनके पास सबूत मौजूद हैं। कनाडा में सिखों पर हमलों और निगरानी की बराह रास्त इजाजत भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दी।
اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران پر حملے کی منظوری دے دی۔ واشنگٹن پوسٹ نے اسرائیلی حکام کے حوالے سے لکھا، اسرائیل امریکی الیکشن سے پہلے ایران پر حملہ کر دے گا۔ اسرائیلی حکام نے دھمکی دی ہے، اسرائیلی جواب کی گونج مشرق وسطی میں سنائی دے گی۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ کہتے ہیں اگر ایران پر حملہ کیا تو دردناک انداز میں جواب ملے گا۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ میجر جنرل حسین سلامی نے کہا، اسرائیل نے حملہ کرنے کی غلطی کی تو جدید امریکی دفاعی نظام تھاد بھی ایرانی انتقامی کارروائیوں کو نہیں روک سکے گا۔ ہم اسرائیل کی کمزوریوں سے واقف ہیں اور یہ بات اسے معلوم ہے۔